Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in to this program. हम आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। It is always a delight to know that you are being blessed by this program. ये जानकर हम हमेशा आनंदित होते हैं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं And we love to hear from you. और आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। So at the end of this program, when you get the address, please write to us. तो इस कार्यक्रम के अंत में जब हम अपना पता बताते हैं तो कृपया आप अवश्य हमें लिखिएगा। And today we're going to begin a new series of messages. और आज हम संदेशों की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। It is entitled Empowered by Praise. इसका नाम है स्तुति के द्वारा सामर्थी होना। And let me begin by saying, और मैं ये कहते हुए शुरू करना चाहता हूँ, there is not a person alive who does not crave fulfillment and joy. ऐसा कोई जीवित मनुष्य नहीं है जो भरपूरी और आनंद की इच्छा नहीं रखता। And today we begin a series of messages that will empower you to have a life of joy and fulfillment. और आज हम एक ऐसी संदेश श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिससे आप आनंद और भरपूरी का जीवन पाने के लिए सामर्थी बनेंगे। I have traveled the width and the breadth of this world. मैंने इस संसार में दूर दूर तक यात्रा की है। I have studied different cultures both empirically and academically. मैंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया है, अनुभव और शिक्षा दोनों से। There is not a single people group anywhere in the world who would not crave fulfillment and joy in life. संसार में कहीं भी एक भी ऐसा लोगों का समूह नहीं है जो जीवन में भरपूरी और आनंद की इच्छा नहीं करता। And you are no different. और आप इससे अलग नहीं हैं। Let me ask each one of you, मैं आप में से प्रत्येक से पूछता हूँ, what is the one thing on top of your wish list? आपकी इच्छाओं की सूची में सबसे ऊपर क्या है? If you answer me honestly, it would be joy and fulfillment in life. यदि आप ईमानदारी से मुझे उत्तर दें तो ये जीवन में भरपूरी और आनंद ही होगा। As the saying goes, we don't want much, we just want everything. जैसे कि एक कहावत है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस हमें सब कुछ चाहिए। Back in the early 90s, my family and I went through a tough time of testing and trials. 90 के दशक के शुरू में मैं और मेरा परिवार दुख और परीक्षाओं के कठिन समय में से गुजरा। Illnesses were hitting different members of our family all around at the same time. एक ही समय पर हमारे परिवार के अलग अलग सदस्यों को बीमारियां घेर रही थी। We learned one of the most important lessons of our Christian life. हमने अपने मसीही जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को सीखा। And we learned it during those times of trial and testing. और ये हमने अपने उन दुखों और परीक्षाओं के समय में सीखा। The Lord so graciously taught us the power of praise. प्रभु ने बड़ी अनुग्रहकारिता से हमें स्तुति की सामर्थ को सिखाया। The Lord so graciously guided us into the empowerment of the life of praise. प्रभु ने बड़ी अनुग्रहकारिता से स्तुति के जीवन की सामर्थ में दाखिल होने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। The Lord so lovingly led us to the higher life. बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से प्रभु हमें उत्तम जीवन तक ले गया। This higher life only comes from knowing how to praise the name of Jesus. ये उत्तम जीवन केवल ये जानने से आता है कि यीशु नाम की स्तुति कैसे की जाती है, Particularly in the tough times. खास करके कठिन समयों में। Listen to what I'm going to tell you in this series of messages. इसे सुनिए जो मैं इस संदेश श्रृंखला में आपको बताने जा रहा हूँ, And follow these things that the Lord taught us. और इन बातों के पीछे चलिए जो प्रभु ने हमें सिखाई। If you do, I promise you, your life will never be the same. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा एक सा नहीं रहेगा। That's not because what I'm going to tell you, ऐसा जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे नहीं है, but it's because of what God's Word tells us. परंतु ये इस कारण है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। I want you to listen carefully and take notes. मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुने और गौर करें। There are people who think that praise means just singing certain songs. कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि स्तुति का अर्थ है कुछ खास गीत गाना Or using special music. या खास संगीत का प्रयोग करना, Because in reality, the life of praise is much deeper than all of this. क्योंकि वास्तव में स्तुति का जीवन इस सब से कहीं अधिक गहरा है। The life of praise has a far greater meaning than all of this. स्तुति के जीवन का अर्थ इस सब से कहीं अधिक बड़ा है। The life of praise has the power within it
to change your life. स्तुति के जीवन में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। The life of praise has the power to strengthen your will. स्तुति के जीवन में आपकी इच्छा को मजबूत करने की शक्ति है। The life of praise has the power to feed your mind and your intellect. स्तुति के जीवन में आपके मन और दिमाग को तृप्त करने की शक्ति है। The life of praise has the power to develop your faith. स्तुति के जीवन में आपके विश्वास के विकास की शक्ति है। But above all, the life of praise has the power to defeat Satan and sin in your life. परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्तुति के जीवन में आपके जीवन में शैतान और पाप को पराजित करने की शक्ति है। Well, you say, why is that? तो आप कहते हैं ऐसा क्यों है? Very simply because the life of praise places us in a position of receiving the blessings of God. बहुत ही आसान, क्योंकि स्तुति का जीवन हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के स्थान में रखता है। Praise flows from a relationship of love and devotion between you and the Lord. स्तुति आपके और प्रभु के मध्य में प्रेम और भक्ति के रिश्ते में से बहती है। Praise brings us closer to the throne room of God. स्तुति हमें परमेश्वर के राज दरबार के समीप ले आती है। Praise changes us and matures us in Christ. स्तुति हमें मसीह में बदलती और परिपक्व करती है। In fact, praise reminds us of who we are and who God is. बल्कि स्तुति हमें स्मरण दिलाती है कि हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है। Praise puts things in perspective. स्तुति बातों को स्वरूप में लाती है। And praise leads us to surrender ourselves to Him who loves us. और स्तुति हमारी अगुवाई करती है कि हम अपने आप को उसको समर्पित कर दें जो हमसे प्रेम करता है। And that is why this series of messages is very important. और इसीलिए ये संदेश श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। I want to share something with you from the life of the great British philosopher by the name of C.S. Lewis. मैं आपके साथ एक महान बरतानवी दार्शनिक C.S. लेविस के जीवन में से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। When C.S. Lewis was a brand new Christian, he was, of course, not mature in the faith. जब C.S. लेविस एक बिल्कुल नया मसीही था तो निश्चय ही वो विश्वास में अभी परिपक्व नहीं था। He had a great deal of difficulty with this whole concept of the life of praise for God and to God. तो परमेश्वर को और परमेश्वर के लिए स्तुति के जीवन के इस पूरे विषय पर उसे बहुत समस्या थी। He had a problem with the idea of praise. उसे स्तुति के विचार के साथ समस्या थी। Some of you probably squirm to open public praise. आप में से कुछ शायद सार्वजनिक तौर पर स्तुति करने के लिए छटपटाते होंगे। That is because your private praise life is in need of help. ये इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्तिगत स्तुति जीवन में सहायता की आवश्यकता है। Like C.S. Lewis, some of you bristle at the Bible's command to praise God all the time. C.S. लेविस की तरह आप में से कुछ हर समय परमेश्वर की स्तुति करने के बाइबल के आदेश पालन से भरे हुए हैं। That means to praise God in good times and in bad times. इसका अर्थ है कि अच्छे और बुरे दोनों समयों पर परमेश्वर की स्तुति करना। Here's what C.S. Lewis said in those early days in his Christian life. ये है जो C.S. लेविस ने अपने मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में कहा। He said, "We all despise the man who demands continued assurance of his own virtue, intelligence and delightfulness." उसने कहा, हम सब उस मनुष्य को कभी अच्छा नहीं समझते जो अपने गुण, बुद्धिमत्ता और आनंददायकता के लगातार आश्वासन की मांग करता है। And then he continued. और फिर वो कहता है, And these words of the scripture sounded like God was saying, और वचन के ये शब्द ऐसा दिखाते हैं कि जैसे परमेश्वर कह रहा था, "What I want most is to be told that I am good and I am great." कि मुझे सबसे अधिक ये सुनना अच्छा लगता है कि मैं अच्छा और महान हूँ। And then he continued. और फिर वो आगे कहता है, It has also seemed as if the psalm writers were bargaining with God. कि ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे भजन लेखक परमेश्वर के साथ सौदेबाजी कर रहे थे। God, do you like praise? परमेश्वर, क्या तुम्हें स्तुति अच्छी लगती है? Well, do this and I will give you some praise. तो ठीक है, ये कर और वो कर और मैं तुम्हें कुछ स्तुति दे दूंगा। And then C.S. Lewis began to mature in the faith. और फिर C.S. लेविस विश्वास में परिपक्व होना शुरू हुआ। He grew in the knowledge of the Word of God. वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ता गया। He grew in his relationship with the Lord. वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ता गया।
So he began to understand the importance of the life of praise. सो उसने स्तुति के जीवन के महत्व को समझना शुरू किया। He began to understand it as a way of daily surrender to the Lordship of Jesus Christ in his life. उसने इसे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के समक्ष प्रतिदिन के समर्पण के रूप में समझना शुरू कर दिया। When he came to a true and deep understanding of the life of praise, जब वो एक सत्य पर पहुंच गया, स्तुति के जीवन की गहरी समझ पर, he said the following: तो उसने ये कहा, Only in the acts of worship and praise can a person learn to believe in the goodness and the greatness of God. कि केवल आराधना और स्तुति के कार्यों के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर की महानता और उसकी भलाई में विश्वास करना सीख सकता है। And then he continued, और फिर वो आगे कहता है, God wants us to praise him not because he needs or craves in any sense our flattery, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, इसलिए नहीं क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है या हमसे अपनी चापलूसी चाहता है, but because he knows that praise creates joy and thankfulness. परंतु इसलिए क्योंकि वो जानता है कि स्तुति आनंद और आभार पैदा करती है। That is the end of the quote. ये इस वाद विवाद की समाप्ति है। I want you to listen to me very carefully, please. मैं चाहता हूं कि कृपया आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Praise is not something that you do for God. स्तुति कुछ ऐसा नहीं है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। Get that out of your head. ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। Praise is not bribing God so that he can give you what you want from him. स्तुति परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं है ताकि जो आप चाहते हैं परमेश्वर वो आपको दे। Get that out of your head too. ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। Praise is not something you do in order to get on God's good side. स्तुति कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप परमेश्वर की भलाई वाले हिस्से में दाखिल होने के लिए करते हैं। Then you give him your shopping list. और फिर आप उसे अपनी खरीदारी के सामान की सूची देते हैं। No. Get all that out of your head. नहीं, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। That is wrong understanding of the life of praise. ये स्तुति के जीवन की गलत समझ है। God taught us that praise places us in the very presence of God. परमेश्वर ने हमें सिखाया कि स्तुति हमें बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में रखती है। God taught us that praise puts us in a different level in our walk with God. परमेश्वर ने हमें सिखाया कि स्तुति परमेश्वर के साथ हमारी चाल में हमें एक अलग स्तर पर रखती है। Some of you may say, but isn't God everywhere all the time? आप में से शायद कुछ कहें, पर क्या परमेश्वर हर समय हर स्थान पर नहीं है? Isn't that true? क्या ये सत्य नहीं है? Absolutely it is true. बिल्कुल ये सत्य है। But the Bible said that God tabernacles. परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर तंबू में रहता है। The word literally means that he pitches his tent in a very special way in the praises of his people. इस शब्द का यथार्थ अर्थ है कि वो अपना तंबू बहुत ही खास तरीके से अपने लोगों की आराधनाओं में लगाता है। That means that he is present everywhere all the time. इसका अर्थ है कि वो हर समय हर स्थान पर उपस्थित है। But he is present in a very special way when his people are lifting up praises to his name. परंतु वो बहुत ही खास तरीके से उपस्थित होता है जब उसके लोग उसके नाम की स्तुति करते हैं। Listen again. फिर से सुनिए। There is nothing greater in life than being in the presence of God in that very special time. जीवन में इस बहुत ही खास समय में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से बढ़कर और कुछ नहीं है। And throughout the series of messages, और इस पूरी संदेश श्रृंखला के दौरान I'm going to try to show you how to do that. मैं आपको ये दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि ऐसा कैसे किया जाता है। During this series of messages, इस संदेश श्रृंखला के दौरान I will tell you about 4 important things. मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातों के विषय में बताऊंगा। The 4 things about the life of praise that I discovered from the Word of God. स्तुति के जीवन के विषय में वो 4 बातें जो मैंने परमेश्वर के वचन में से पाई हैं। Number 1, नंबर 1, praise reveals to us our true spiritual condition. स्तुति हम पर हमारी असल आत्मिक दशा को प्रकट करती है। That's what praise does. स्तुति ये करती है, It reveals to us our true spiritual condition. ये हम पर हमारी असल आत्मिक दशा को प्रकट करती है। The second thing praise does,
is refocus our personal destiny. दूसरी बात जो स्तुति करती है वो है हमारे व्यक्तिगत भाग्य को फिर से सही करना। Third, तीसरा, praise reestablishes God's reign over our hearts. स्तुति हमारे हृदयों पर परमेश्वर के राज्य को फिर से स्थापित करती है। And fourthly, और चौथा, praise reinforces our relationship with God. स्तुति परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाती है। Number one, नंबर 1, how can praise reveal to us our spiritual condition? स्तुति कैसे हम पर हमारी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। In Matthew chapter 12, verse 34, here's what Jesus said. मत्ती 12 अध्याय के 34 पद में यीशु ने कहा, Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। Let me repeat this. मैं इसे फिर से दोहराता हूं। Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। What is Jesus saying here? यहाँ यीशु क्या कह रहा है? He is saying that you cannot separate what you are saying from what you're really thinking. वो कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसे उससे अलग नहीं कर सकते जो आप असल में सोच रहे हैं। You cannot separate what you say from what you really believe deep down in your heart. जो आप कहते हैं इसे उससे अलग नहीं कर सकते जिस पर आप अपने हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं। If your heart is full of praise and thanksgiving to the Lord, यदि आपका हृदय प्रभु के लिए स्तुति और धन्यवाद से भरा है, you will speak words of praise and thanksgiving. तो आप स्तुति और धन्यवाद के शब्द बोलेंगे। Here's what Jesus is saying. ये है जो यीशु कह रहा है That there is a fan belt between your inner being and your mouth. कि आपके मुंह और आपके अंदरूनी भाग के बीच में एक घुमाने वाला पट्टा लगा हुआ है। The fan belt essentially makes sure that what's in there comes out. वो घुमाने वाला पट्टा मूल रूप से निश्चित करता है कि जो वहां अंदर है वही बाहर आए। That's really how he made us. और असल में ऐसे ही उसने हमें बनाया, This is how he created us. ऐसे ही उसने हमें सृजा। This is who we are. यही हम हैं। In other words, whatever is in the well दूसरे शब्दों में कुएं में जो भी है will come out in the bucket. बाल्टी के द्वारा बाहर आएगा ही। If the well has water, यदि कुएं में पानी है, when you lower the bucket, it will bring up water. जब आप बाल्टी को उसमें डालेंगे तो ये पानी बाहर लाएगी। Now, some of us don't think a great deal before we speak. अब हम में से अधिकतर लोग बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचते। Sometimes we speak in haste. कई बार हम जल्दी में बोलते हैं, But nonetheless, that does not negate the connection between our mind and our lips. परंतु तो भी ये हमारे मन और होठों के मध्य में संबंध का खंडन नहीं करता। And it does not negate the connection between our beliefs and our confession. और ये हमारी आस्थाओं और स्वीकरण के मध्य संबंध का खंडन नहीं करता। People say that the eyes are the windows of the soul. लोग कहते हैं कि आंखें मन की खिड़की हैं, But the mouth is not always the door to the brain. परंतु मुंह हमेशा दिमाग का द्वार नहीं है। Jesus is saying what you express in words is what you believe deep down. यीशु कह रहा है कि जो आप शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं वही आप अंदर से विश्वास करते हैं। Please hear me right on this one. कृपया इस पर मुझे ठीक से सुनिएगा। If you are a griping and complaining person all the time, यदि आप हर समय जकड़े हुए और शिकायत करने वाले व्यक्ति हैं, you can't say, well, I just say these things, तो आप ये नहीं कह सकते, खैर मैं ये बातें यूं ही कहता हूँ, but I don't really believe them inside. परंतु असल में अंदर से मैं इन पर विश्वास नहीं करता। That is not true. ये सच नहीं है। It is because you have an ungrateful heart, you gripe and you complain all the time. ये इसलिए है क्योंकि आपके पास एक अकृतज्ञ हृदय है, इसलिए आप हर समय जकड़े हुए और शिकायती हैं। And that is why people run away from you as far as they can get. और इसीलिए लोग जितनी दूर आपसे भाग सकते हैं भागते हैं। Now, if you do not know this, I'm glad to tell you. अब यदि आप ये नहीं जानते तो आपको ये बताकर मैं खुश हूँ। If you speak words of discontentment all the time, यदि आप हर समय असंतोष के शब्द बोलते हैं, it is because you have a discontented life and attitude. तो ये इसलिए है क्योंकि आपके पास एक अशांत जीवन और रवैया है।
If you speak words of dissatisfaction all the time, यदि आप हमेशा असंतुष्टि की बातें करते हैं, it is because you have a dissatisfied life and attitude. तो ये इसलिए है क्योंकि आपके पास एक असंतुष्ट जीवन और व्यवहार है। If you speak critically of people all the time, यदि आप हर समय लोगों में दोष निकालते हैं, it is not just because you got in the habit of talking critically of people, ये केवल इसलिए नहीं है कि आपको बस यूं ही लोगों में दोष निकालने की आदत है, but it is because you have a critical spirit on the inside of you that is coming out in those critical words. परंतु ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो दोष निकालने वाली आत्मा जो उन दोषपूर्ण शब्दों के द्वारा बाहर आती है। I hope you listen to me very carefully and don't turn the radio off, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और रेडियो बंद नहीं करेंगे, because I want you to develop the life of praise. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्तुति के जीवन को विकसित करें। Your praising lips are in direct proportion to your believing heart. आपके स्तुति करने वाले होंठ आपके विश्वासी हृदय के समानुपात हैं। Some people may say, well, I praise God in my heart and quietly. कुछ लोग शायद कहते हैं, मैं तो परमेश्वर की स्तुति चुपचाप अपने हृदय में करता हूँ, I just don't express it in words. मैं बस यूं ही शब्दों में प्रकट नहीं करता। Jesus is saying that your words are expressions of your heart. यीशु कह रहा है कि आपके शब्द आपके हृदय का प्रगटावा है। And if your heart is full of praise, you cannot keep your mouth shut. और यदि आपका हृदय स्तुति से भरा है तो आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। You want to let your mouth express the praises that are in your heart. आप चाहते हैं कि आपका मुंह वो स्तुति प्रकट करे जो आपके हृदय में है। So here's the first lesson, that praise reveals our spiritual condition. तो ये है पहला सबक कि स्तुति हमारी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। But secondly, praise refocuses our personal destiny. परंतु दूसरा, स्तुति हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः निर्धारित करती है। But I've noticed that we run out of time. परंतु मुझे लग रहा है कि हमारा समय समाप्त हो चुका है। That is why I want you to tune in next time when I'll tell you more about how praise refocuses our personal destiny. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी सम्मिलित हों जब मैं आपको बताऊंगा कि स्तुति कैसे हमारे व्यक्तिगत भाग्य को पुनः केंद्रित करती है।